सबसे पहले रुक करते हैं कर्नाटक का, जहां पर येदियुरप्पा हुकूमत की तश्कील होने के बाद लगातार परेशानियों से यह हुकूमत जूझ रही है। सैलाब का कहर झेल रही रियासत में अब फंड पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का इल्जाम है कि बिना पैसे का नाम बदलने वाली सरकार फंड में भी तफरीक कर रही है। सैलाब मुतासिरों को राहत के नाम पर सिर्फ बीजेपी एमएलए को फंड जारी हो रहा है। हालांकि इस मामले में रियासती वजीर ने सिद्धरमैया हुकूमत के दौर को याद दिलाया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उनके दौर में बीजेपी हुकूमत के किसी भी काम को रोका नहीं गया। It's not a question of maybe. In Hyderabad, Karnataka region, Kalyan, Karnataka, what is called now, there the CM special fund has been released. Not even 1 rupee has been given to Congress or JDS MLAs. Including the funds? They have only been given to the BJP MLAs. And then they have given some to those people who have defected from the Congress to join BJP. You know, what kind of a governance is this? You mean to say those people who are staying in those constituencies, which Congress has won, they are going to be now left, and not looked after? There will be no development in those constituencies. Aren't there BJP people also there in those constituencies? Aren't there voters of BJP in that constituency also? So this kind of petty politics by Mr. Yediyurappa, I didn't expect from him. Even DC He is such a seasoned and experienced chief minister. I didn't expect Mr. Yediyurappa to behave in such a petty manner. और वहीं इस मौके पर दिनेश गुंडूराव ने बीजेपी को सिद्धरमैया हुकूमत की याद दिलाई। New governments come in, they don't stop the previous government's works, sanctioned works. When we came into power, we never cancelled any of the BJP's works. In fact, even in Bangalore city, there was so much of pending works, pending bills, spillover works. We completed all of those works, except for those which were a few which had to be deleted. We completed all their works, paid all their bills, recovered all the properties that they had pledged and gone. We did all that. So for a government to work in a vengeful manner, trying to cut the grants previously sanctioned and approved, and also stopping tenders, stopping new works from taking place, and then ordering inquiries unnecessarily, all this is not only bringing down development, but also this is not the way democracy should function. Yes, we agree, a ruling government will tend to favor little bit more towards their MLAs. That is a natural reaction, which we will not oppose. Let them give a little bit more to their own MLAs. I will keep quiet about it. But to take such vengeful action, clear discrimination, is not good. So that will be discussed in today's CLP. और इस बीच सैलाब मुतासिरों के हक में हुकूमत की खामोशी के खिलाफ कांग्रेस ने मुजाहरा किया। असेंबली के सामने गांधी मुजस्मे के पास हुए मुजाहरे के दौरान लीडरान ने मरकजी हुकूमत पर नजरअंदाजी का इल्जाम लगाया। सिद्धरमैया ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की याद दिलाते हुए कहा कि येदियुरप्पा के सीएम रहते हुए उन्होंने पैसा देने में ताखीर नहीं की, जबकि बीजेपी हुकूमत के दौरान भी मरकज ने आज तक 1 रुपया जारी नहीं किया है। इसकी जिम्मेदारी येदियुरप्पा पर लगाते हुए सिद्धरमैया ने उन्हें अब तक का सबसे कमजोर सीएम करार दिया। This is the step for the attitude of government of India. So far, even after 1.5 months, they have not released a single pie to Karnataka. This is the first time it has happened. In 2009, when there was a flood in Karnataka, at that point of time also, Mr. Yediyurappa was the chief minister. Mr. Manmohan Singh was the prime minister of this country. He came down to Karnataka and took a aerial survey, and he announced in Raichur on the spot 1,600 crores. But so far, this Narendra Modi's government has not given single pie, and our MPs and our ministers and the government, they have not bothered to take money from the government of India. Minister has taken aerial survey, finance minister has taken aerial survey. That is why that is the stepmotherly attitude. It is because this Mr. Yediyurappa is the weakest chief minister ever Karnataka had. Weakest chief minister. There is no pressure on the government of India. उधर कर्नाटक के सीनियर वजीर के.एस. ईश्वरप्पा ने मुसलमानों को लेकर एक मरतबा फिर से मुतनाज़ बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं देने वालों को बल्कि पाकिस्तान परस्त बताने वाले अपने बयान की फिर हिमायत की है। एक सवाल के जवाब में ईश्वरप्पा ने कहा है कि मुल्क में 3 तरह के मुसलमान रहते हैं, जिसमें बीजेपी की हिमायत करने वाले ही वतन परस्त है, जबकि पाकिस्तानी फिरका रखने वाले कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और
वाज़ेह है कि इससे पहले भी ईश्वरप्पा ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था और बाद में उसकी वजाहत पेश करते हुए इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि रियासती हुकूमत ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। रियासती वजीर मधुस्वामी का कहना है कि ये उनका ज़ाती बयान है और इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। डीके शिव कुमार के बाद कांग्रेस के एक खातून लीडर को ईडी ने नोटिस भेजा है। पार्टी एमएलए लक्ष्मी हेबालकर को कल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना है। इस मामले में हेबालकर का कहना है कि यह बदले के जज्बे की सियासत है, लेकिन वो कानून का एहतराम करते हुए ईडी के सामने हाजिर होने जा रही है। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पार्टी लीडर रिजवान अरशद ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत मुल्क से अपोजिशन का सफाया करना चाहती है, जो आने वाले दिनों में जमहूरियत के लिए खतरनाक इशारा है। वाज़ेह है कि रियासत के कद्दावर लीडर डीके शिव कुमार इस वक्त जेल में हैं, जिनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। By ED, let me see. I'll go tomorrow and let me see. Madam, do you think this is a political vendetta? Of course, it is political vendetta. Ma'am, you have been summoned on tomorrow. At what time are you going there? They summoned me on 14th, but I took a time. So again, they called me tomorrow. So let me see. I'll go there and I'll check. I no idea at all for what they are called. Do you fear anything, ma'am, now? No, nothing. Nothing. Because your leader is in The investigation is going on. Everybody knows that this is a political vendetta. He'll face and he'll come outside. I have that faith. Why do you think you're summoned, ma'am? In what case? No idea at all, my dear brother. No idea at all. They just mentioned that you have to come for this investigation. So I'm going there. I respect a lot. मुल्क के सबसे बड़े तनाज़े का फैसला नवंबर के दूसरे हफ्ते में आ सकता है और सभी फरीक को बात पूरी करने की हद तय होने के बाद इसके आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन समाअत के बीच अपने हक में फैसले के दावे पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, यही उम्मीद है। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा मुझे नहीं मालूम, मगर सुप्रीम कोर्ट जाहिर है सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करते आया है और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ ही करेगा। अयोध्या तनाज़े पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर अपना एतमाद दिखाने वाला ये बयान है असदुद्दीन ओवैसी का। हालांकि उन्होंने फैसला अपने हक में आने का दावा करने वाले एनडीए लीडरान पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना का ये बयान तौहीन अदालत के दायरे में आता है, जिस पर अदालत को खुद अज़ नोटिस लेना चाहिए। चाहे शिवसेना हो बीजेपी हो, सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहिए आप ये बात। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन लोगों को, जाके सुप्रीम कोर्ट ने बात कहे तो आप कैसे मालूम सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट देगा? अभी जो सुनवाई चल रही है, कैसे मालूम एनडीए को और एनडीए के पार्टनर्स को कि इस तरह का फैसला आ जाएगा और वो ये सब कर लेंगे? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। ये जो लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है, कोर्ट तय कर रहा है, आपके साथ आप तो तय नहीं करने वाले ना, जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट देगा। तो इस तरह के बयान देना ये तो कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट का, और ये तो अजीब व गरीब इस तरह की बात करते रहते हैं। जहाँ इलेक्शन आ गया तो शुरू हो गए, इलेक्शन खत्म हुआ तो भूल जाते। इस दौरान एमआईएम सदर ने सालिसी की खबरों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे संजीदा इश्यूज को लीक करने वाले क्या साबित करना चाहते हैं? अगर ऐसा चल भी रहा है तो मामला आम कैसे हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया को वो जो लेटर लिखा गया वो लेटर कैसा मिला आप लोगों को, और लेटर लीक करने वाले लेटर क्यों लीक कर रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं वो लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी ताज्जुब खेज बात है। लेटर जो मीडिएशन चाह रहे लेटर लिखते हैं और लेटर जाता है, जिसके पास जाता है वहां से लेटर निकलता है या कोई वो खुद देते हैं, नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रही समाअत के दौरान अदालत ने सभी फरीक से 18 अक्टूबर तक दलील पूरे करने की हिदायत दी है। इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि वो हफ्ते के दिन भी समाअत के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहस के बाद फैसला लिखने में भी हफ्तों का वक्त लगेगा, जबकि चीफ जस्टिस 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ता आगे। आंध्र प्रदेश के साबिक स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद ने खुदकुशी मामले के लिए टीडीपी के जगन हुकूमत को जिम्मेदार बताया है। टीडीपी लीडर की आखिरी रसूमात के बाद साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू ने उन पर लगाए गए क्राइम चार्जेस की तफसील बताते हुए संगीन इल्जाम लगाए। कोडेला स्पीकर के अलावा रियासत में कई अहम वजारत की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। कोडेला पर दीगर बदनुमानियों के अलावा फर्नीचर चोरी तक का इल्जाम लगा था, जिसके बाद से ही वो परेशान चल रहे थे। तेलुगु देशम पार्टी का इल्जाम है कि बदनुमानी का इल्जाम लगाकर टीडीपी लीडरान को परेशान किया जा रहा
रहा है। ऐसे ही इल्जामात से तंग आकर कोडेला ने खुदकुशी कर ली। ఆ రెచ్చగొట్టిన కేసుల్లో మీరు చూస్తే ఎక్స్టార్షన్ క్రైమ్ నెంబర్ 123, క్రైమ్ నెంబర్ 131 ఎక్స్టార్షన్, క్రైమ్ నెంబర్ 136 చీటింగ్, క్రైమ్ నెంబర్ 149 చీటింగ్, 153 ఎస్సీ ఎస్టీ పిఓఏ యాక్ట్, 163 క్రైమ్ నెంబర్ ఎక్స్టార్షన్, క్రైమ్ నెంబర్ 164 చీటింగ్, crime number 169 cheating and forgery, crime number 172 trespass, crime number 231 trespass, extortion, molestation, crime number 235 extortion causing simple hurt and abuse naming the caste, crime number 238 extortion, crime number 244 criminal breach of trust and assembly furniture, crime number 245 एक्सटॉर्शन। और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में बस इतना ही।